مسیح تعالیٰ کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد آمین مقبول. میرے عزیزو، مسیح مصلوب کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج میں آپ کے لیے دوسرا صلیبی کلمہ لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے نجات کا کلمہ. آئے میرے ساتھ کھولیں لوکا مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 23واں باب اس کی 43ویں آیت جس میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ دوسرا کلمہ ہے، اور تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہوتے ہوئے اپنی ہوش مندی میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی روحانی سوچ کو عمل میں لاتے ہوئے اس دوسرے کلمے کو اپنے منہ سے ادا کیا، جس کے الفاظ انجیل مقدس میں اس طرح مرکوز ہے. لوکا 23واں باب اس کی 43ویں آیت، اس نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو، یہ دوسرا کلمہ ان 2 ڈاکوؤں میں سے ایک کے لیے تھا جو دونوں یسوع مسیح کے صلیب کے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اپنی صلیب پر لٹکے ہوئے تھے. دونوں اپنے سنگین جرم کے سبب صلیب پر اپنی سزا بھگت رہے تھے. ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک خداوند یسوع مسیح کو تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے تائب ہو کر تانا دینے والے ڈاکو کو جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ تو اپنی اس سزا میں گرفتار ہے. ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر تائب شدہ ڈاکو نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یہ دوسرا کلمہ اس تائب شدہ ڈاکو کے لیے ادا ہوا جو خدا یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے. خدا یسوع مسیح اپنی روحانی نظر کے ساتھ اس کے خالص باطن کے اظہار کو جان کر اپنی روحانی قدرت کے اپنے شدہ مسیح پر ایمان لانے والے ڈاکو کو اپنی روحانی سچائی کا یقین دلاتے ہوئے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا یسوع مسیح نے اسے آج ہی فردوس میں لے جانے کا وعدہ کیا، جس نے خدا یسوع مسیح کو بادشاہ جانتے ہوئے اس کی بادشاہی کے آنے کا اپنا یقینی اظہار کیا، جس کی بدولت خدا یسوع مسیح نے اس کو فردوس میں آج ہی لے جانے کا یقین دلایا. میرے عزیزو، یہ فردوس کیا ہے؟ فردوس خدا یسوع مسیح کی نظر میں خاص اور اہم جگہ کا نام ہے. بائبل مقدس کے الہامی اور روحانی علم کے مطابق 3 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پلوس اس کا دوسرا خط 12واں باب دوسری آیت میں لکھا ہے، اور تیرے آسمان پر ہی فردوس اور تیسرے آسمان پر ہی فردوس موجود ہے. دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی چوتھے میں ہے، فردوس ایک روحانی آرام کی جگہ ہے. مکاشفہ کی کتاب کے مطابق فردوس کی شناخت خدا کے فردوس کے نام سے حاصل ہوتی ہے. میرے عزیزو، اس میں زندگی کے درخت کی موجودگی کا اظہار بھی ملتا ہے، جس کے پھل پر خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کا اختیار ہے، اور اس کی طرف سے یہ اظہار ملتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے زندگی کا درخت کا پھل کھانے کو دوں گا. مکاشفہ 2 باب 7 ہے. تیسرا آسمان سب سے اوپر والا آسمان ہے، اور تیسرے آسمان پر ہی خداوند کا میرے عزیزو تخت لگا ہے. زبور 11 تیسری آیت اور متی رسول کی معرفت کے لیے 5:34 میں لکھا ہے، لیکن یسایہ نبی بھی فرماتا ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح کے منہ سے تائب شدہ اور مسیح پر ایمان لانے والے ڈاکو کے لیے فردوس میں لے جانے کا ذکر ہوا. میرے عزیزو، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی نظر میں یہ روحانی آرام کی
महफूज जगह है जो तीसरे आसमान पर मौजूद है, जहां खुदावन का तख्त है, जहां से वो जमीन और आसमान पर अपनी हुक्मरानी को जारी रखता है। फरदौस मसीह में बचाए हुए लोगों की रूहें आराम के साथ सुकूनत रखती हैं और खुदा की आखिरी अदालत के वकूअ में आने तक मसीह ईमानदारों की रूहें आराम के साथ सुकूनत रखती हैं और खुदा की आखिरी अदालत के वकूअ में आने तक मसीह ईमानदारों की रूहें फरदौस में आराम करते हुए सुकूनत करेंगी। और जो लोग इस मसीह पर ईमान रखते हैं मेरे अजीजों, उनके लिए भी ये जगह खोल दी गई है। यीशु मसीह के दूसरे सलीबी कलमे का इल्म इलाही की मर्जी, खुदा की मर्जी और बड़ी नूह इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत और मेरे अजीजों फिक्र का ज़हार अमल में आता है। खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए दूसरे कलमे की रूहानी वुसअत में खुदा के इलाही भेद की 3 सूरतों में ज़हार मिलता है। पहला, खुदावंद यीशु मसीह के लामहदूद इलाही इख्तियार का सबूत। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले की निजात मेरे से यकीनी है। तीसरा और आखिरी, यीशु मसीह पर ईमान लाने का आज ही का वक्त मेरे अजीजों मुनासिब है। इन तीनों रूहानी सच्चाइयों को बाइबल मुकद्दस के इल्म इलाही की रोशनी में जानना और समझना मुमकिन होगा। खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे सलीबी कलमे में छुपी हुई पहली रूहानी सच्चाई ये है, यीशु मसीह के इलाही इख्तियार का सबूत। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने इस सलीबी कलमे के जरिए साबित किया खुदा का मसीह, खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है और अपने आसमानी बाप से पाए हुए जमीन और आसमान के कुल अख्तियार यानी अपने लामहदूद इलाही इख्तियार का मालिक होते हुए मत्ती 28वां बाब उसकी 18वीं आयत के तहत कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इस दूसरे कलमे में उसने पूरे वसूल के साथ कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा, क्योंकि ये कहना उसके इख्तियार में था। मेरे अजीजों, इंजील मुकद्दस इस रूहानी सच्चाई से मेरे अजीजों हमें आगाह करती है कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मत्ती 9 बाब की 16वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए डाकू के गुनाह माफ कर दिए। जब तक कोई अपने गुनाह से माफी और खुलासी और पकीज़गी हासिल नहीं करता, खुदा के सुकूनती हल्के में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा पाक है। जो कोई खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। डाकू ने भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से अपने जुर्म और अपने गुनाह से खलासी पाई। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों यानी अपने मसीही ईमानदारों को ये रूहानी तसल्ली दे रखी थी, जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस में इस तरह मौजूद है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। मेरे अजीजों, ने कहा कि जहां मैं हूं तुम भी हो। यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली 3 आयत का अगर मुताला करें, यीशु मसीह की दुआ दी हुई रूहानी तसल्ली मसीही ईमानदारों की मोहब्बत पर इसका अमली इतलाक होगा। मसीही ईमानदारों को यह भी यकीन दिलाया कि मैं तुमको जहां मैं हूं तुम भी हो। यीशु मसीह को दी हुई रूहानी तालीम का अमली इतलाक बचाए हुए डाकू पर भी होता है, और यूदा यीशु मसीह ने इस डाकू को याद लाया कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह ने डाकू को अपने साथ फरदौस में ले जाने का यकीन दिलाकर अपने इलाही इख्तियार और अपनी दी हुई तसल्ली बख्श रूहानी तालीम का अमली तलाक करते हुए याद लाया कि यीशु ने कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास
नहीं आता। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने अपने बड़े रूहानी इख्तियार को जानते हुए दुनिया के हर इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह ईमान रखने वाले के लिए ये रूहानी यकीन दहानी करवाई है। अजीजों, खुदा के पास जाने के लिए खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह वाहिद और जिंदा और रूहानी सच्ची राह है। इस टाइप का मसीह पर ईमान लाने वाले डाकू को उस राह से मसीह के साथ फरदौस में जाने को बरकत हासिल हुई। दूसरे कलमे के गहरे भेद की नकशिफ होने से दूसरे रूहानी सच्चाई की मंजर आप आती है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले की निजात यकीनी है। जी हाँ, जिस तरह डाकू ने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया और उसकी निजात हो गई, अगर हम बतौर मसीही इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उस पर कि खुदा हमारा खुदा है, वो इकलौता बेटा है, तो हमारी निजात यकीनी है। मेरे अजीजों, जो डाकू सलीब पर होते हुए खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, जो कि खुद भी मसलूब हो रहा था, ईमान लाया और निजात पाई। गोया यीशु मसीह की सलीबी मौत और कब्र में दफन होने पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके शागिर्दों को, जिनको मसीह के रसूल होने का दर्जा मिला और रूह कुदस की कुदरत को पाने से दलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी, जो उसके तजस्सुम से लेकर उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर चले जाने के बाद सब लोगों के सामने सुनाने में मशगूल हुए। अमाल की किताब, जो इब्तदाई कलीसिया की तारीख की किताब है, उसमें जिक्र मौजूद है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त तीसरे पहर को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के दरवाजे पर बैठा देते थे ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख, और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है तुझे दे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उस दम से उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलना और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में दाखिल हो गया। अमाल 30 की पहली 8वीं आयत में ये सारा वाकया लिखा है। इस मोजज़े को सुनकर सरदार काहिन के घराने के लोग यरूशलेम में जमा हुए और पतरस और यूहन्ना को बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों बुजुर्गों, अगर आज हमसे इस इंसान की बात पुरुष कर दी जाती है जो एक नापा आदमी पर हुआ कि वो क्यों अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में जलाया, उसके नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है। और ये वही यीशु जिसको तुमने महामारों को हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और उसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। मेरे अजीजों, अमाल की किताब में रूह कुदस की रहनुमाई में दर्ज होने वाला वाकया, पतरस और यूहन्ना के वसीले वकूअ में आने वाला मौजज़ा जो यीशु मसीह नासरी के नाम से अमल में आया, इस मौजज़े के अमल में आने पर रसूलों ने रूह कुदस से मामूर होकर ये गवाही की मनादी करना शुरू की कि आसमान के तले आदमी को कोई नाम दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सके। और इस तरह दुनिया के हर इंसान की निजात के लिए यही नाम बख्शा गया है, यीशु मसीह खुदावंद खुदा का बेटा। यीशु मसीह के रसूलों ने ये गवाही दी कि खुदा की निजात से इस निजात का कलाम हमारे पास भेजा गया। मेरे अजीजों,
गोया ये निजात का जो खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह कफारा शुदा मोहब्बत के वसीले मुहैया की गई। इस निजात के पैगाम को हम खुदा के हुक्म से सुना रहे हैं। ये खुदा का दिया हुआ पैगाम दुनिया के सब इंसानों के लिए है। इसके साथ मुकद्दस अनाजील में रूह कुदस की रहनुमाई में जो बातें खुदावंद यीशु मसीह के मतलब लिखी गई है, तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और मुकद्दस लूका ने रूह कुदस की रहनुमाई में अंजीली बयान के तौर पर इसका इज़हार इस तरह किया है। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी की इसके नाम से की जाएगी। ये आसमानी रोया की सूरत मुकद्दस लूका पर खुदा रूह कुदस के वसीले अयां की गई कि यीशु मसीह नासी के नाम से तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी की जाएगी। ये मुनादी खुदा के हुक्म और पैगाम के मुताबिक अब तक जारी रहेगी और खुदा की तरफ से यह पैगाम सब कौमों के लिए है। यीशु के दूसरे सलीबी कलमे के इल्मे इलाही पर मसीही रूहानी नजर से बाइबल मुकद्दस की लहामी और रूहानी सोच पर गौर करने से यीशु मसीह के दूसरे सलीबी कलमे की रूहानी वुसअत में खुदा के इलाही भेद के अमल में आने वाली तीसरी सच्चाई को जानने का मौका होगा। तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए आज ही का वक्त मुनासिब है। मेरे अजीजों, ये दूसरा कलमा खुदा यीशु मसीह के मुंह से सरजद हुआ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये कलमा उस डाकू के लिए कहा गया जो ताइब होकर यीशु मसीह पर ईमान लाकर भी जानता था कि वह अपने संगीन जुर्म की सजा में मसीह की सलीब के पास मसलूब हो रहा था। वह जानता था कि सलीब पर होते हुए आज ही उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। मगर जितना वक्त इस डाकू को मसीह पर ईमान लाने और सलीब पर होते हुए मसीह के साथ अपने ईमान का ज़हार करने में मिला, डाकू ने इस वक्त को गनीमत जानकर अपनी अब्दी खलासी का खुदा के बेटे यीशु मसीह से खुदा के फरदौस में जाने का अंदिया हासिल कर लिया कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। इस डाकू की मिसाल के मुताबिक आज का दिन और आज ही का मिलने वाला हर किसी के लिए कीमती और जरूरी है, खुसूसन तीन बातों में: मसीह पर ईमान, यीशु मसीह की खुशखबरी सुनने और सुनाने में, और यीशु मसीह को कबूल करने और निजात पाने का आज ही का दिन मुनासिब है। पहला, यीशु मसीह पर ईमान लाने में। मेरे अजीजों, इंसान अपनी जिस्मानी जिंदगी में इस दुनिया में रहते हुए फानी है। वो अपने कल से ला इल्म है, इसलिए उसको अपने अहम काम और अहम फैसला करने पर कल पर छोड़ने का इंसान की कम अक्ली है। खुसूसन पर ईमान लाना जिससे इंसानों की आकबियत का ताल्लुक है। इंसान अपनी मौत के बाद कब्र में कोई फैसला न कर पाएगा, इसलिए यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए आज ही का दिन और आज ही का वक्त मुनासिब है। इब्लीस इंसान और खुदा दोनों का दुश्मन है। इब्लीस अक्सर इंसान को अपने ईमान और तौबा से मुतल्लिक अहम फैसलों को कल पर छोड़ देने की तरगीब देता है। अक्सर इंसान इस सोच में खोकर अपने बड़े नुकसान का सबब बनते हैं। इसलिए अपनी रूहानी आफियत के लिए खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए आज का दिन जरूरी और मुनासिब है। दूसरा, खुदा यीशु मसीह खुशखबरी को सुनने और सुनाने में आज ही का दिन मुनासिब है। पुराने अहदनामे में मेरे चीजों एक वाकया खुदा की तरफ से रूनमा होता है जिसका इज़हार अलीशा के दौर में और शाह इसराइल अखीयाब का बेटा सामरिया में इसराइल पर हुकूमत करने के दौर में अमल में आता है। उस वक्त शाह असूर आराम के मासा के समय सामरिया में बड़ा काल पड़ा था और सामरिया के चारों कोरियों ने आरामी लश्करगाह में जाकर देखा कि लश्करगाह में कोई आदमी नहीं और लश्करगाह में सब चीजें जो कि तू मौजूद थी। फिर उन्होंने वहां से कुछ चीजें चुराई और छुपा दी। सलातीन की दूसरी किताब उसके 7वें और 9वें बाब में।
پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں، اور اگر ہم آج صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے، پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ میرے عزیزو، چار کوریوں نے آج ہی کے دن کو خوشخبری سنانے کے لیے مناسب سمجھا۔ نئے عہد نامے میں بھی بیت لحم کے چرواہوں کو خدا کی طرف سے فرشتے کی طرف سے دی ہوئی خوشخبری ملی، مگر فرشتے نے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، جو کا دوسرا باپ بننے سے ستانی ہے۔ چرواہوں نے خدا کی طرف سے فرشتے کی معرفت پائی ہوئی خوشخبری کا یقین کیا۔ کیا دنیا کے منجی خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی برکت حاصل کی اور خوشخبری کو اسی دن دوسروں تک پہنچا دیا؟ میرے عزیزو، اس سے انہوں نے اس خوشخبری کو اسی دن کو سننے اور سنانے کا سب سے پہلا اعزاز حاصل کیا، اور اب تک چرواہوں کے عمل کو یاد رکھا جائے گا، اور انجیل مقدس میں ان کا ذکر تاریخی طور پر قائم رہے گا۔ مناسب وقت اور مناسب دن جو آج کے دن کو یہ شہادت حاصل کی گئی ہے، میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے اور نجات پانے کا آج ہی دن مناسب ہے۔ اس حقیقت کا اظہار انجیل مقدس میں پڑھنے کو اس طرح ملتا ہے، جو پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام کو روح القدس کی رحمت میں لکھا گیا، اس میں یوں مذکور ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا وقت ہے، یہ دیکھو یہ نجات کا دن ہے، یہ نجات کا وقت ہے۔ یہ خدا نے اپنا پیغام اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح میں سننے کا موقع دیا۔ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے میرے عزیزو کہ وہ اس پیشکش کو قبول کریں اور خدا کے دیے ہوئے وقت کو غنیمت جانیں۔ خدا کی طرف سے آج ہی کا دن نجات کا دن ہے۔ اس دن کو نظر انداز کرنا یا اس کو قبول کرنے کا التوا کرنا انسان کی غفلت اور سستی سے انسان کو روحانی نقصان ہوگا، جس کا ازالہ اور کسی طرح سے اور کسی جگہ سے نہیں ہو سکے گا۔ میرے عزیزو، آئے ہم بھی اس ڈاکو کی طرح خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور نجات کو حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔